Hello students, today I am going to discuss part 7th of Principles of Inheritance and Variation. In this part we will discuss about non-disjunction. So first we will discuss about what is non-disjunction. It is the failure of rapid chromosomes to separate or to disjoin during cell division, so that both chromosomes go to one daughter cell and none go to the other. Non-disjunction causes errors in the chromosome number such as trisomy 21 or Down syndrome and monosomy Turner syndrome. It is also a common cause of early spontaneous abortion. So, non-disjunction is a type of, as you can understand, that non-disjunction means that inability to separate or to disjoin of homologous chromosome at the time of anaphase 1 of meiosis. So it was first observed by the Bridges in 1916. He was the first to find out non-disjunction in sex chromosome in Drosophila. So it is the failure of synapse homologous chromosomes to separate during the anaphase 1 of meiosis. It can be artificially induced by application of colchicine and granosine. So it is a type of non-disjunction during which homologous chromosomes they are unable to separate, and the separation of chromosomes takes place during the anaphase 1 of meiosis. As you know, and you have discussed in class 11, that synapsis takes place at the time of zygotine stage of prophase 1 of meiosis, and after that separation during the metaphase 1 they are arranged near the equator, and during the anaphase 1 the chromosomes get separated. The homologous chromosomes get separated during the anaphase 1 of meiosis, and they are equally separated to two different cells. This also can be artificially induced by colchicine and granosine, because we will discuss later that in plants it can be beneficial to increase the number of chromosomes in a plant, for example polyploidy. So this non-disjunction can be induced by applying colchicine and granosine. Here we can understand diagrammatically that what is normal meiosis and how non-disjunction takes place during the meiosis 1 and non-disjunction during the meiosis 2nd. Normally what happens that it's a diploid cell, it's a normal cell, and here 2n number of chromosomes are present. Diploid number of chromosomes are present. During meiosis 1, these are the homologous chromosomes, and you can see that there is a pairing between the homologous chromosomes. They get separated at the time of anaphase 1 of meiosis, and homologous chromosomes they get separated to two different cells. So these are the haploid cells, and after that meiosis 2nd there is a breakdown of chromatid takes place during the anaphase 2nd of meiosis 2nd, and each cell receives one chromosome. So all these are haploid cells. They contain half the number of chromosomes of their original parents. So all these are the haploid chromosomes. This is the normal meiosis, and this separation takes place at the time of anaphase 1. It takes place during the anaphase 1. But what happened during the non-disjunction and at the time of meiosis 1 is these are the homologous chromosomes, as you have seen in first diagram, that these homologous chromosomes get separated to two different cells
at the time of anaphase 1, during the anaphase 1. But here what happens that both the homologous chromosome, they move to this cell. There is no chromosomes present in this cell. It is devoid of chromosome. यहाँ पर कोई भी chromosome नहीं है. And meiosis second is normal, and it means that each chromatids, they get separated and they enter into the two different cells. So this one is a diploid cell. Here both the homologous chromosomes are present in one cell. In another cell there is no chromosome is present. यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम लिखेंगे कि n+1 हो जाएगा, and here also it is n+1, and here because no chromosomes is present, तो n-1 हो जाएगा, and here n-1. इट मीन्स कि जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आप देख सकते हैं, एक ऑरेंज कलर का एक क्रोमोजोम बना हुआ है, ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम है. यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम और आ गया है, इसलिए इसको हम n+1 लिखेंगे. यहाँ भी ऐसे ही है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम. यहाँ आप देखिए दोनों में, इन सब के अंदर एक एक क्रोमोजोम आना चाहिए. तो यहाँ पर एक क्रोमोजोम ज़्यादा है इसलिए +1 लिखा गया है. यहाँ भी एक क्रोमोजोम ज़्यादा है इसलिए +1 लिखा गया है. यहाँ पर एक क्रोमोजोम कम हो गया है, जैसे इस केस में और इस केस में है. यहाँ पर एक क्रोमोजोम कम है तो इसको हम -1 लिखें. यही नॉन डिजंक्शन जो है मियोसिस सेकंड के वक्त भी हो सकता है. यहाँ पर भी एनाफेज सेकंड में जो क्रोमेटिड है, ये चीज़ आपको मालूम है कि मियोसिस में एनाफेज 1 में द होमोलोगस क्रोमोजोम गेट सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ एनाफेज 1, and during the meiosis second the chromatids get separated. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये होमोलोगस क्रोमोजोम में पेयरिंग हो रही है, they are separated, लेकिन these are the chromatids and during the anaphase second these chromatids get separated. यहाँ आप देख रहे हैं ये जो chromatid है it get separated from here and they enters into the two different cells. So but here there is no separation of chromatid takes place and both the chromosomes enter into one cell. There is no chromosome is present in another cell, and here normal anaphase takes place in this cell and both of they receive normal number of chromosomes. तो इसको हम n हैप्लॉइड है, ये इसको हम n+1 लिखेंगे. यहाँ एक क्रोमोजोम ज़्यादा हो गया है और इसको हम n-1 लिखेंगे कि जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम जितने भी होने चाहिए थे उससे एक कम है. तो इस तरह से ये नॉन डिजंक्शन होता है. यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखिए कि नॉन डिजंक्शन है क्या. ये अगर ये मियोसिस फर्स्ट के वक्त हो रहा है तो इसको हम कहेंगे कि नॉन सेपरेशन और नॉन डिजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम एट द टाइम ऑफ एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 की एनाफेज 1 के वक्त ये होमोलोगस क्रोमोजोम ये नॉर्मल है. फर्स्ट से आप कंपेयर कर सकते हैं, ये नॉर्मल है. यहाँ पे नॉर्मली ये सेपरेट हो रहे हैं, एक ब्लू वाला इधर आता है और ऑरेंज वाला क्रोमोजोम इधर आ रहा है, तो ये नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोजोम दो सेल में सेपरेट हो गए हैं. लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल सेपरेशन नहीं हुआ है. एक ब्लू इधर आना चाहिए था, ऑरेंज इधर आना चाहिए था, यानी एक एक होमोलोगस क्रोमोजोम अलग अलग सेल में पहुंचने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं पहुंच रहे हैं. दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम एक ही सेल में पहुंच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन हुआ है. एनाफेज 1 में ये होमोलोगस क्रोमोजोम किसी वजह से सेपरेट नहीं हो पाए हैं. अब जो दूसरा सेल है जब ये डिवाइड होगा तो उसके अंदर जो एक एक क्रोमोजोम होना चाहिए था वो कम है, इसलिए इसको n-1 लिखा गया है. यहाँ पर आप इससे कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट केस से, क्योंकि यहाँ एक एक क्रोमोजोम होना चाहिए था लेकिन एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम हो गया है, इसलिए n+1 लिखा गया. तो यहाँ पर इस केस में मियोसिस 1 में
there is non-disjunction of homologous chromosome during the anaphase 1 causes this type of problem. And in this part, if this takes place at the time of anaphase second of meiosis second, यहाँ पर देखिए meiosis first नॉर्मल थी, यानी दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम, अगर इस फर्स्ट केस से आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी एक ऑरेंज है, यहाँ पर भी ऑरेंज है, यहाँ पे एक ब्लू है, यहाँ पर भी ब्लू है, तो ये एक नॉर्मल meiosis वन इज़ नॉर्मल. बट ड्यूरिंग द meiosis सेकेंड there is a separation takes place, separation of chromatids takes place. meiosis सेकेंड में क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होते हैं. जब ये अगर ब्लू में देखेंगे तो ये नॉर्मल सेपरेशन हो रहा है, ये एक क्रोमेटिड इधर आ गया, एक क्रोमेटिड इधर आ गया, तो यहाँ पर ये नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं, इधर भी नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं. यहाँ पर ये ऑरेंज इधर आना चाहिए था, लेकिन ये सेपरेट नहीं हो पाया, इसलिए दोनों एक ही सेल के अंदर हैं, तो इसको हम n+1 लिखेंगे और इसको n-1 लिखेंगे. So this is non-disjunction. Here in this part we can see that normal meiosis in sex chromosome. सेक्स क्रोमोजोम में अगर नॉर्मल meiosis होती है तो क्या होता है, हमारे एक सेल के अंदर ये एक डिप्लॉइड सेल है, and after that it becomes haploid, and all these cells are also haploid. ये gametes हैं and gametes are haploid. Haploid का मतलब होता है कि they contain half the number of chromosomes of their genome, of their total number of chromosomes present in their parent cell. तो यहाँ आप देख सकते हैं 22 + XY है, 44 + XY है, और यहाँ पे 22 + X है. अब यहाँ ये meiosis, ये meiosis 1 है और ये meiosis सेकेंड है. ये एक नॉर्मल meiosis हो रहा है. 44 + XY सेल क्रोमोजोम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं. जब ये डिवाइड होंगे तो ये ऑटोजोम हैं 44, ये डिवाइड होकर 22 इधर आ जाएंगे और 22 इधर आ जाएंगे और ये हैप्लॉइड सेल बन जाएगा. सेक्स क्रोमोजोम भी, इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, कि एक सेक्स क्रोमोजोम इस सेल में पहुंचेगा X और दूसरा Y दूसरे सेल में पहुंचेगा. इसके बाद meiosis सेकेंड में कोई रिडक्शन नहीं होता है, बट ईच सेल डिवाइड टू फॉर्म द 2 डॉटर सेल. तो ये वाला जो सेल है ये डिवाइड होगा, देन हेयर विल बी 22 + X, 22 + X, और जब यहाँ पर यही डिवीज़न होगा तो 22 + Y और 22 + Y होगा. तो ये नॉर्मल गैमेट्स हैं. ये क्योंकि ये हमने मेल क्रोमोजोम्स लिया है, मेल सेक्स क्रोमोजोम लिया है, तो 50% स्पर्म्स के अंदर X क्रोमोजोम होगा और 50% स्पर्म्स के अंदर Y क्रोमोजोम्स होगा, और ये सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे. लेकिन अगर इन्हीं सेक्स क्रोमोजोम में नॉन डिजंक्शन पाया जाता है तो क्या होगा. सेक्स क्रोमोजोम क्या है, X Y हैं, इनके अंदर नॉन डिजंक्शन होने का मतलब है कि X और Y जो है ये सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्यूरिंग एनाफेज 1 of meiosis 1, meiosis 1 के वक्त ये हो रहा है, और यहाँ पे meiosis सेकेंड है. meiosis 1 में आप देखेंगे there are 44 ऑटोजोम्स and 2 sex chromosome X and Y. Here non-disjunction is taking place during the meiosis 1. देखिए ऑटोजोम में नॉन डिजंक्शन नहीं पाया जा रहा है. 44 क्रोमोजोम है तो 22 इधर आ गए और 22 इधर आ गए, तो यहाँ पे तो सेपरेशन हो गया होमोलोगस क्रोमोजोम का. लेकिन जो X और Y है, जो सेक्स क्रोमोजोम है, यहाँ पर नॉन डिजंक्शन पाया जा रहा है, यानी ये सेपरेट नहीं होते हैं. और जो नॉर्मल में आप देखेंगे एक X इधर आ गया था, एक Y इधर आ गया था, यहाँ दोनों X और Y एक ही सेल में आ गए हैं. दूसरे सेल में देयर इज़ नो
नो सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट हेयर, यहाँ पे कोई भी सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट नहीं है। अब ये डिप्लॉइड होगा, नॉर्मली ये डिप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होते हैं गैमेट्स, लेकिन यहाँ हम देखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब जो मियोसिस सेकेंड है वो एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, यहाँ पर जो सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब ये सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो दोनों के अंदर 22 प्लस XY क्रोमोजोम होंगे, इसके अंदर भी 22 प्लस XY। नॉर्मली क्या होता है 22 प्लस X होते हैं, यानी टोटल कितने हैं यहाँ 23 क्रोमोजोम है, 23। लेकिन यहाँ पर कितने क्रोमोजोम हो गए 24 हो गए। तो हैप्लॉइड में कितने होते हैं 23 प्लस 1, ये कितने हो जाएंगे 23 क्रोमोजोम हो गए। तो यहाँ पे 24 क्रोमोजोम हो गए, तो यहाँ पे एक क्रोमोजोम ज़्यादा है। यहाँ पर भी 24 क्रोमोजोम हो गए, तो इसको भी हम n+1 लिखेंगे, क्योंकि n का मतलब है 23, n+1 इक्वल टू 24। यहाँ पे 24 क्रोमोजोम हो गए। इन दोनों सेल्स में एक भी सेक्स क्रोमोजोम नहीं है, तो यहाँ पर नॉर्मली 23 होना चाहिए था, लेकिन एक कम है तो इसको n-1 लिखा जाएगा, इसको भी n-1 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 23 क्रोमोजोम होने चाहिए थी और एक क्रोमोजोम कम है। तो इस तरह से अब होता क्या है कि ये एक स्पर्म है, इसके अंदर एक सेक्स क्रोमोजोम ज़्यादा है। मान लिए ये स्पर्म 22 प्लस XY है इसके अंदर, और ये स्पर्म किसी एक एग के साथ फ्यूज होता है जिसके अंदर 22 प्लस X है। तो ये क्या है, दीज आर द गैमेट्स, ये गैमेट्स हैं। जब ये फ्यूज होंगे तो जो ऑफ स्प्रिंग है उसके अंदर कितने क्रोमोजोम होंगे 44 प्लस XY। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, इसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोजोम है। तो इस इंडिविजुअल के अंदर क्योंकि दो X क्रोमोजोम है, एक Y है, तो ये एक मेल होगा, क्योंकि XY है मेल होगा, लेकिन दो X क्रोमोजोम है तो इसके अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे। तो ये एक ऐसा मेल होगा जिसके अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो इसका जो रीजन है वो एक नॉन डिजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोजोम है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जितनी भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। तो इट इज़ वेरी short topic, and it is very important. If you can understand this, then it will be easier for you to understand the next topic or the genetic disorder. So this is all about non-disjunction.